Good evening, sir. Good evening. Yes, how are you? Fine, sir. Good. Okay. So, what have you done? Yes, sir, done. Life is like a stage, and we all are puppets here. And strings of all the puppets are in the hands of God. God makes us God makes us dance as He wishes. We come here to play a part, and we go back to God after we had played our part, and someone else or someone new come near to play our parts. Simple, that is life. Fine, but two mistakes are there. Like you should say after we have played our part and someone new comes, not comes to Someone can. take our place. Okay, good. Well, repeat once. We had Someone, we played. when we have played our parts, we go back to God. And someone new comes to that place. Come to that place. Okay. Okay. And the sentence is Now 10 sentences so far. okay. So far, the weather has been perfect for our vacation. Has been perfect. So far बाद में लगाइए. Acha. The weather has been perfect for our vacation so far. अब तक अच्छा रहा है. Hmm. The negotiations have been productive so far. Negotiation Negotiations have been HAVE have been productive so far. ये आपने नेट से बनाए. हाँ सर, नेट से बनाया है मैंने. ओके. The new software. तो डेली लाइफ में बोलते हैं ना उस तरह से बनाइए. ये तो ठीक है पर थोड़ा ये अपर लेवल में आ गई ये जो आपने बनाए ना. कोई बात नहीं, ये उसमें आ गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. चलिए कोई बात नहीं. हाँ. The new software is running smoothly so far. ये कंटिन्यूअस में चलो ठीक है. The team has won all their matches so far. ठीक है, ये सही है. अब तक सारे मैच जीत गई है. Hmm. The medicine has helped reduce the pain so far. ये बहुत बढ़िया है. The training has been informative and engaging so far. The plan has been executed flawlessly. अब ये ना So far. पैसिव में चला गया. हाँ. परफेक्ट का पैसिव हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट. The trip has been amazing so far. The train hasn't arrived at the station yet. ये सही है. ट्रेन अभी तक आई नहीं. Have you eat dinner yet? Have you eaten dinner yet? यस. Eaten. He still hasn't called me back yet. I haven't seen that movie yet. अभी तक नहीं देखी ये मूवी. I haven't seen that movie. The package hasn't arrived yet. It's not time to leave yet. He's not ready for the competition yet. We have finalized the plans. We haven't finalized the plans yet.
The cake was fairly sweet. The movie was fairly entertaining. Entertaining. The weather today is fairly mild. Hmm. The price of the item was fairly reasonable. Hmm. The restaurant was fairly empty. Hmm. The food Fairly, was fairly fairly. तो फेयरली एम्प्टी क्यों खाली पड़ा है तो Hmm. उसको आप पॉजिटिव वे में ले रहे हैं क्या? The मतलब आप restaurant. मतलब खाली है तो उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं आप कि हाँ चलो अच्छा खाली इसमें खाते हैं खाना, तो सही है। लेकिन हम सोच रहे हैं खाली पड़ा है इसमें क्या जाना, Hmm. फिर रेदर आएगा। चलिए नेक्स्ट। The food was fairly tasty. व्हाट? The food was fairly tasty. हाँ डिलीशियस यू कैन हाँ. से। हाँ ठीक The है। traffic was fairly heavy in this morning. फेयरली हैवी कुछ जम नहीं रहा, रेदर आना चाहिए वहां पे, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है तो फेयरली क्यों होगा, तो अपने को तो प्रॉब्लम ही होगी ना, तो रेदर आना चाहिए वहाँ पे। हम्म। She spoke to him fairly softly. पार्डन? She spoke to him हाँ fairly softly. हाँ ये ठीक है। The room was rather small. ये ठीक है, बहुत छोटा She, है। हम्म। she is not angry. She rather upset. हम्म। I would rather go swimming. I would rather go swimming than play tennis. हम्म। He is rather shy, but he is a kind person. ओके। The book was rather confusing, but I finished it. हम्म। बस, all done, sir. कंफ्यूजिंग थी या कंफ्यूजिंग है फिर भी मैंने पढ़ ली। द बुक इज रेदर कंफ्यूजिंग, Hmm. एनी हाउ आई Hmm. फिल, किसी भी तरह मैंने उसको कर ली Hmm. कंप्लीट। ओके, सो लेट्स गो टू। I want you to today. ये सही है, ये सही। देखिए समटाइम्स वी मेक सेंटेंसेस, suppose I say I want to do something, it's okay, it's simple. I want to dance, I want to sing, I want to learn English, it's okay. But when we want someone to do something, Hmm. जैसे ये तो सही है, मैं ये करना चाहता हूँ, I want to learn English, I want to speak English fluently, पर जैसे हम किसी को बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, तो उसमें हम क्या करते हैं, आई वॉन्ट, तो मैं चाहता हूं क्या, तुमको, है ना, तो आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, तो ये इस तरीके से बनते हैं, जैसे आई वॉन्ट यू टू लर्न, मैं चाहता हूं तुम सीखो इंग्लिश। Hmm. अब सपोज इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, लाइक मैंने कहा कि योर बॉस wants you to take rest as you are not well, because this is singular subject. Your boss wants you to take rest, मतलब तुम्हारा बॉस चाहते हैं कि तुम रेस्ट कर लो, Hmm. बिकॉज यू आर नॉट वेल, तो ही wants you to do that, like your teacher wants you to study well, तुम्हारा टीचर चाहते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तो लाइक दिस, बट इट कैन बी इन क्वेश्चन ऑल्सो, जैसे मैंने कहा डू यू
It is a question. Do you want to learn English? It's a question. Do you want to learn English? आपने कहा yes, I do. आप सीखना चाहते हो? Do you want to learn English? Yes, I do. लेकिन मैं कहूँ do you want me to teach English? What does it mean? What is the answer? Yes, I teach. No. Do you Check. want to me to teach English? आप मुझे इंग्लिश टीच करना चाहते, आप मुझे इंग्लिश टीच करेंगे? हाँ, तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ. Do you want me to teach you? Do you want me to teach you? Teach कर देते Yes, you. इसमें you और कर लीजिए. Do you want me to teach you? yes sir, please teach me. तो ये तो हो गया. क्या आप चाहते हो मैं आपको पढ़ाऊं? Hmm. अब मैं ये कहूँ do you want to teach me? मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं आपको पढ़ाऊं. Do you want to teach me? Want to teach me. Do you want to teach me? Do you want me to teach you? Sir, both are different. Different है, of course. But try to understand the meaning. Do you want to teach me? No sir. Yes, very good. Answer is no. Do you want to teach me? क्या आप मुझे पढ़ाना चाहते हो? Do you want to teach me? No. अब आपको कहना चाहिए आंसर I want you to teach me. No. I want you to teach me. मैंने कहा do you want to teach me? अब no. I want you to teach me. मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप मुझे पढ़ाएं. Like, okay. Hmm. Like that, it is simple, but it is very commonly used in English. So you may practice that also. Next is present perfect continuous. It is very simple. Perfect continuous. Time is always there, but it looks like in continuous. Like suppose I have been teaching you for a month. तो मैं आपको 1 महीने से पढ़ा रहा. आई हैव बीन टीचिंग यू. तो सिंपल वही है. आई हैव, हैज, बीन एंड आईएनजी वाला फॉर्म प्लस टाइम. शुड आई राइट हियर सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन प्लस V1 और इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं अपन. ठीक है, सॉरी, V1 आईएनजी प्लस फिर फॉर सिंस का यूज करते हैं इसमें हम टाइम के साथ. फॉर सिंस प्लस टाइम. तो यू नो फॉर मीन्स or since. You should understand the difference between where to use since and where to use for. Like period of time is there, you use for. When point of time is there, we use since. How you will recognize? तो सिंपल सी एक छोटी सी बात है कि जो टाइम आप घड़ी में कैलेंडर में देख सकते हो उसके पहले सिंस लगाइए, बाकी सबके साथ फॉर. हाउ? लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. जैसे मैंने कहा
मैं लंबे समय से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो इसमें क्या लगाओगे आप? हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट? मैं लंबे समय से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। since. नहीं, लंबा समय आपको कहाँ दिखेगा? ना घड़ी में दिखेगा, ना कैलेंडर में दिखेगा। So for period of time. हाँ, क्योंकि उसमें अवधि है। अवधि मतलब समझते हैं, ड्यूरेशन। Hmm. तो फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी और एग्जांपल से समझ आएगा आप। तो हाउ यू आर गोइंग टू मेक द कंप्लीट सेंटेंस? मैं लंबे समय से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। I am doing exercise for for a प्रेजेंट for a परफेक्ट जब long होगा period. तो हैज बीन, हैव बीन आएगा। अगर आपने सिंपल ये बोला आई एम टेकिंग एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्ग टाइम, ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग। आई हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना? तो हैज, हैव बीन। ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं, जैसे कि मैं आपको 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो 8 बजे से, तो यहाँ पे फॉर या सिंस क्या यूज करोगे? इधर since करेंगे क्योंकि 8 बजे से है इसके लिए। क्योंकि घड़ी में दिखता है 8 बजे। हम्म। क्लियर हुआ? जो हम्म। घड़ी और कैलेंडर में दिखेगा उसमें सिंस। तो हम्म। आई हैव बीन टॉकिंग टू यू सिंस 8 o'clock। I अब have been. हाँ, आई हैव बीन टॉकिंग टू यू या आई हैव, देखो टाइम आएगा ना तो हैज, हैव बीन आएगा ही आएगा, है ना? तो सिंस कहाँ कहाँ आएगा? जहाँ जो टाइम कैलेंडर में या घड़ी में दिखेगा। हम्म। लेकिन जैसे अगर आया नाइट या मॉर्निंग या इवनिंग या यस्टरडे, तो इस तरह से जो आएगा ना, नाइट, लास्ट नाइट, मॉर्निंग, यस्टरडे, तो इसमें हमेशा सिंस आएगा। हम्म। जैसे किसी ने कहा मुझे या उसे या तुमको कल रात से बुखार आ रहा है। Since morning I have fever. कल रात से, अच्छा कल रात से, लास्ट नाइट। ये सब since बाद last में आएगा। कल since रात last से बुखार आ रहा है। I since have been suffering from fever fever, since since last night. last night. I have been suffering from fever, है ना? तो I have a fever ये भी बोल सकते हो। I have a fever since last night। अब हमने बोला कल रात से बहुत बारिश हो रही है। हिंदी में एक शब्द होता है मूसलाधार बारिश हो रही है। तो क्या बोलोगे? It has been raining from it has been raining since last night. ठीक, लेकिन इसमें एक चीज और है, मूसलाधार मतलब बहुत तेज, भड़ाभड़। तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में कैट्स एंड डॉग्स।
अब आप सोचो ये कुत्ते बिल्ली कहाँ से आ रहा है इसमें, लेकिन बोला जाता है इंग्लिश में। तो क्या बोलेंगे, इट हैज बीन रेनिंग cats and dogs since last night। तो कल रात से भारी बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग cats and dogs since last night। अब जित सेंटेंस बना लिया आपने, इसमें कुछ और जोड़ दिया, अरे मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, या मैं बहुत डर रहा हूँ, आई एम अफ्रेड। कब रुकेगी? अब और सेंटेंस जुड़ गए उसमें, ऐसे स्पीकिंग बनती जाती है। आपने कहा इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस लास्ट नाइट, आई एम अफ्रेड। मुझे डर है। कब रुकेगी? तो When सिंपल, it stops. I'm वैन। afraid when rain stops. अब रेन की बात तो करनी नहीं, रेन तो चली रही है, रेन तो चली रही है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो अब रेन को दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस लास्ट नाइट, आई एम अफ्रेड। अब क्या हो जाएगा, सिंपल, वेरी सिंपल, व्हेन इट इज गोइंग टू स्टॉप। सिंपल हो गया। आई एम अफ्रेड व्हेन इट इज गोइंग टू स्टॉप। कब रुकेगी, या कब रुकने वाली है, व्हेन इट इज गोइंग टू स्टॉप, Hmm. राइट। Sorry. Hmm. कब रुकने वाली, व्हेन इट इज गोइंग टू स्टॉप, है ना। अब Yes, जैसे sir. मैंने आपसे पूछा, आप डिनर कब करने वाले हो, आप डिनर कब करने वाले हो। When you take when you have been take dinner. अब जी परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, तो सिंपल है। कब करने वाले हो, तो अभी जो लिखा है मैंने, गोइंग टू, When you going to take dinner. व्हेन आर यू, क्वेश्चन है ना, व्हेन आर यू, है ना, आ जाएगा धीरे धीरे, जब दिमाग में सेट होने लगेगी ना ये चीजें, देन यू विल स्पीक सेंटेंसेस स्पॉन्टेनियसली। तो जैसे, कब करने वाले हो आप डिनर, व्हेन आर यू गोइंग टू हैव योर डिनर, व्हेन आर यू गोइंग टू हैव योर डिनर। तो यू में आंसर, आई हैव माई डिनर एट 9। तो ये फ्यूचर में भी बोल सकते हो, आई विल हैव, 9 बजे करूंगा या करूंगी, Hmm. या आई एम गोइंग टू हैव, आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर एट 9 o'clock टुडे। अब उसमें नया सेंटेंस भी जोड़ना है। वैसे तो मैं रोज 8 बजे कर लेती हूँ, पर आज 9 बजे करूंगी डिनर, है ना। तो वैसे तो मैं, वैसे तो मतलब यूजुअली, मतलब प्राय, ज्यादातर, है ना। तो इसमें क्या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई यूजुअली, है ना, आई यूजुअली हैव माय डिनर एट, जो भी टाइम आपको लगता है, आई यू, At 8 p.m. But today, हाँ टुडे, but today, I eat. आई एम गोइंग टू, या आई विल हैव, ये Hmm. बनेगा। आई यूजुअली, वैसे तो मैं आई यूजुअली हैव माई डिनर एट 8 p.m, बट आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर एट 9 टुडे, बिकॉज, क्यों करूंगी आज 9 बजे, सुनिए फिर से,
आई यूजुअली, अब क्वेश्चन क्या था, व्हेन आर यू गोइंग टू हैव योर डिनर टुडे, कब करोगे आज आप डिनर? तो आपने कहा यूजुअली हैव माय डिनर एट 8 p.m. बट टुडे आई एम गोइंग टू हैव माय डिनर एट 9 because I am expecting some of the guests. क्योंकि आज मेरे पास मेहमान आने वाले हैं, आ रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग सम ऑफ द गेस्ट्स, सम ऑफ द गेस्ट्स। तो कुछ मेहमान मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, है ना? फिर से मैं पूरा बोलता हूँ, फिर आप बोलिए, ठीक है? मैं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ। ओके ओके। आई यूजुअली हैव माई डिनर एट 8 p.m. बट टुडे आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर एट 9 बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग सम ऑफ द गेस्ट। हाँ, ये तो बोला आपने, लेकिन अब इसमें थोड़ा नेचुरलिटी कैसे लाएंगे कि हम बिल्कुल नेचुरल इंग्लिश बोल रहे हैं? तो आराम से बोलना है। जैसे किसी ने बोला, when are you going to have dinner today? आप, I usually have dinner at 8 p.m. every day, but today I am going to have my dinner at 9 because I am expecting some of the guests. तो ये क्या नेचुरल स्पीकिंग हो गई। अब इस पे आना है आपको, सेंटेंस मेकिंग आई, फिर आपने उसको बनाया, अब आना है नेचुरल वे पे। चलिए बोलिए। स्पीक। आई यूजुअली हैव माई डिनर एट 8 p.m. उसमें every मत day. देखो, उसमें नहीं देखो, अपने I आप से। usually I usually have my dinner every day at 8 p.m. But today I'm expecting some guests. So today I going to take at 9 p.m. हाँ, अब देखो आपने डिफरेंट बोला लेकिन नेचुरल आया हो, हाँ। तो इसलिए बिना देखे बोलना, क्योंकि हम डिपेंड हो जाते हैं उस पर फिर कि अरे यही बोल, नहीं बोलना, मैं अपने दिमाग से बोलूंगी, जो दिमाग बोलेगा वो बोलूंगी। तो अब आपने वो लास्ट वाला पहले बोल दिया तो कोई बात नहीं, चलेगा, भाई कुछ भी तो बोलना है। आई यूजुअली हैव माई डिनर एट 8 p.m. but today I am expecting some of the guests. I will have dinner with them. अब नया बन गया, I will have dinner with them. आज मैं उनके साथ डिनर करूंगी। अब आपने कहा वो आज ना बहुत समय बाद आ रहे हैं, आज वो मेरे पास बहुत दिनों या बहुत लंबे समय के बाद आ रहे हैं। And today they are going to come after a long time. वेरी नाइस सेंटेंस। दे आर गोइंग टू कम, ये तो बहुत लोग, बहुत कम लोग बोलते हैं, पर ये एक्चुअल सही सेंटेंस है। गोइंग में कम भी आ सकता है, गो भी आ सकता है। Hmm. आई एम गोइंग टू गो देयर भी बोल सकते हो आप। लोग कहेंगे अरे गोइंग भी आ रहा है फिर गो भी लगा रहे हो, लेकिन सही है, आई एम गोइंग टू गो, मैं जाने वाला हूं वहां पे, आई एम गोइंग टू गो देयर। दे आर गोइंग टू कम, दे आर गोइंग टू कम टू मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू। ये भी जुड़ गया उसमें, जोड़ना है, बोलना है। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू वेलकम देम। एक्साइटेड टू, टी ओ ओ वाला है वो भी। Hmm. हाँ हाँ। आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड टू, किस लिए? टू वेलकम देम। ठीक है, ये हो गया। अब आप उनसे कह रहे हो, जिसने आपसे प्रश्न किया था कि आपको पता है कौन आ रहा है,
अब आप उनसे प्रश्न कर रहे हो, उन्होंने पूछा, आपने इतना सब बोल दिया। आई यूजुअली हैव डिनर एट 8, but today I am expecting some of the guests, so I'll have dinner with them at 9. So I am very much excited and happy to welcome them. अब आपने उनसे पूछा, आपको पता है कौन आ रहा है? तो पूछते ना, आपको पता है कौन आने वाला है या कौन आ रहा है, तो क्या बोलोगे? आपको पता है? Do you know who comes today? हाँ, चलेगा, बहुत बढ़िया। Who comes today? अच्छा है, ठीक है ना? कौन आता है या आ रहा है, कोई बात नहीं। अब इसमें अपन या हाँ ठीक है, हु इज कमिंग टू मी ये भी बोल सकते हो, पर वो भी अच्छा है, नो प्रॉब्लम। अगर डू यू नो, वो तो पहला प्रश्न था। अब कई बार क्या होता है, इंग्लिश में डबल क्वेश्चन नहीं होते, उसको भी समझिए यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। जैसे किसी से पूछते डू यू नो, तुम्हें पता है मैं सुबह क्या करती हूँ? अब ये है, अब हिंदी में सोचोगे तो दो क्वेश्चन लग रहे हैं आप, क्या तुम्हें पता है, एक तो ये लग रहा है क्वेश्चन, मैं सुबह क्या करती हूँ दूसरा क्वेश्चन ये लग रहा है आपको। बट इफ you think it deeply, you will come to know that first sentence is a question but second one is not a question, क्योंकि उसमें जो है, आपने बोला क्या तुम्हें पता है मैं सुबह क्या करती हूँ, अब वो क्या नहीं है, आप उससे थोड़ी पूछ रहे हो कि मैं क्या करती हूँ, तो क्वेश्चन नहीं है वो। आप उससे एक्चुअली ये कह रहे हो क्या तुम्हें पता है जो सुबह मैं करती हूँ, तो वो जो है, क्लियर हुआ? Hmm. तो यहाँ पे लेकिन जो के लिए भी इंग्लिश तो वो व्हाट ही होती है, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा बाद वाला, कैसे बोलोगे फिर इसको? क्या तुम्हें पता है मैं सुबह क्या करती हूँ? Do you know what I'm doing in? Do you know what I'm going to doing in morning? अब गोइंग टू हर जगह नहीं लगाना है, वो तो फिर आप ये कह रहे हो क्या करने वाली हूँ। Simple. Do you know what I? Do you know what I do in morning? हाँ बस सिंपल। गोइंग टू तब होता है जब कुछ करने वाले हैं फ्यूचर में। अब क्या हुआ, डू यू नो व्हाट आई डू इन मॉर्निंग, डू यू नो व्हाट माय नेम इज, तो व्हाट इज माय नेम नहीं बोलेंगे। अगर किसी ने ये बोला, सुनो आप, ये बहुत अच्छी चीज है, डू यू नो, अब कई लोग क्या करते हैं डबल क्वेश्चन बना देते हैं, जो नई नई अंग्रेजी सीख रहे होते हैं ना, वो लोग कर देते हैं ये मिस्टेक। जैसे डू यू नो, सीखे हुए भी बोल देते हैं कई बार, डू यू नो व्हाट इज माय नेम। अगर किसी ने ये बोला तो सही है कि गलत है, इज इट राइट और रॉन्ग? डू यू नो व्हाट इज माय नेम, इज दिस सेंटेंस करेक्ट और रॉन्ग? This sentence is wrong. यस, एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि डू यू नो भी क्वेश्चन है, तो व्हाट इज माय नेम भी क्वेश्चन है, तो डबल क्वेश्चन नहीं होते इंग्लिश में। तो डू यू नो इस कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। तो सेंटेंस डू यू नो व्हाट माय नेम इज, ये बनेगा, Hmm. दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन। डू यू नो व्हाट माय नेम इज। अब उसने कहा
या आपने कहा तो पता है मैं कौन हूँ? डू यू नो हु आई एम? वेरी गुड, वेरी नाइस। तुमको पता है मैं कौन हूँ? डू यू नो हु आई एम? हम्म। अब मैंने कहा हाँ मुझे पता है तुम कौन हो। आपने तो कह दिया डू यू नो हु आई एम, तुम्हें पता है यस मैं आई नो। कौन हूँ। अब यस मैंने आई कह नो। दिया हाँ मुझे हु तो आर पता। यू? हाँ हाँ मुझे पता है तुम कौन। सही बात है, हाँ मुझे पता है तुम कौन हो। तो क्या बोलोगे इसको फिर? यस आई नो हु आर यू। नहीं, हुआ क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन यस नहीं। आई नो हु यू आर। यस, क्योंकि बीच में भी क्वेश्चन नहीं होता। अगर सेंटेंस शुरू हो गया तो बीच में क्वेश्चन नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है तो बाद में भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपने कहा डू यू नो हु आई एम, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं आई नो हु यू आर, मैं जानता हूं तुम कौन हो। आई नो हु यू आर। ठीक, इट्स लाइक दैट। चलिए नेक्स्ट। तो ये कुछ चीजें आई तो मैंने कहा आई शुड डिस्कस इट हियर। अब इसमें क्या होता है, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सम ऑफ द सेंटेंस दे आर इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बट दे डोंट लुक लाइक कंटिन्यूअस, पर वो लगते नहीं। जैसे अगर मैं कहूं इफ, मतलब मैं 33 ईयर्स से टीचर हूं, या 33 साल से एक इंग्लिश का टीचर हूं। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, अगर वर्ब नहीं मिल रही हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 33 ईयर्स, इस तरीके से बना लेंगे। कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन है, दिख नहीं रहा कंटिन्यूअस मगर है। आई हैव बीन टीचर फॉर 33 ईयर्स। अब वही सेंटेंस इसमें जोड़ दें तो डू यू नो हु आई एम, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 33 ईयर्स। तो पता है मैं कौन हूँ, मैं टीचर हूँ 30, मतलब 33 साल से। डू यू नो हु आई एम, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 33 ईयर्स। डोंट ट्राई टू टीच मी, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू टीच मी, आई टीच स्टूडेंट्स। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, अब ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को चलना चाहिए आगे। बता देते हैं, ग्रामर में तो फिर आएगा आएगा जब आएगा। स्पीकिंग करते हैं चलिए। तो अब जैसे मैंने कहा, ये तो हो गया, डू यू नो हु आई एम, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 33 ईयर्स। अब आपको कहना मैं यहाँ मतलब पढ़ने मतलब मेरे को कोई पढ़ाए इसके लिए यहाँ नहीं हूँ, यहाँ नहीं बैठा हूँ या नहीं यहाँ नहीं आया हूँ। आई एम हियर। अब दो तरीके से बनाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा तो अगर कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई एम हियर नॉट टू बी टॉट, अब ये थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। अब इसको थोड़ा कोशिश करिए समझने की। आई एम हियर नॉट टू बी टॉट, इसका क्या मतलब हुआ? मैं यहाँ हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई पढ़ाए। नॉट टू बी टॉट, अब ये रिवर्स हो गया, पैसिव बन गया ये। आई एम हियर नॉट टू बी टॉट, मतलब मुझे कोई पढ़ाए इसके लिए नहीं हूं मैं यहाँ। आई एम हियर टू टीच यू। अच्छा चलो एक उदाहरण लेते हैं, उससे समझ में आया। अच्छा, आई वॉन्ट टू
ऑर्डर, इट्स अ सेंटेंस। चलो ठीक है, आई वॉन्ट टू ऑर्डर समवन, आई वॉन्ट टू ऑर्डर माई सबऑर्डिनेट, चलो ये लेते हैं ठीक है। सबऑर्डिनेट मतलब जो आपके अंडर काम करते हैं उनको सबऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपने कहा आई हैव मैनी सबऑर्डिनेट्स अंडर मी, मतलब आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं ना, दे आर सबऑर्डिनेट्स। तो आपने कहा आई वॉन्ट टू ऑर्डर समवन, या आई वॉन्ट टू ऑर्डर माय सबऑर्डिनेट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं उनको ऑर्डर देती हूँ या देना चाहती हूँ। आई ऑर्डर, आई वॉन्ट टू ऑर्डर। अब इसको रिवर्स करना है कि कोई मुझे ऑर्डर दे, ये मैं नहीं चाहता। तो इसको रिवर्स कैसे कर दोगे आप पैसिव में, आई डोंट वांट टू बी ऑर्डर्ड। क्लियर हुआ? इज इट कंफ्यूजिंग? यस सर, ये सेंटेंस कंफ्यूजिंग है। कोई बात नहीं। देखो, जैसे वो वाला था, आई वॉन्ट टू, आई एम हियर टू टीच यू, समझो, आई एम हियर टू टीच यू, आई एम नॉट हियर टू बी टॉट। तो टू बी थर्ड फॉर्म, टू बी जब रिवर्स होगा, टू बी थर्ड फॉर्म। आई एम नॉट हियर टू बी टॉट, आई एम नॉट हियर टू बी ऑर्डर्ड। मैं यहाँ इसलिए नहीं कि कोई मुझे ऑर्डर करे। आई डोंट वॉन्ट टू बी ऑर्डर्ड, आई वॉन्ट टू ऑर्डर, आई डोंट वॉन्ट टू बी ऑर्डर्ड। मुझे ऑर्डर करना है पर मुझे कोई ऑर्डर नहीं करे। मुझे कोई ऑर्डर, अब हिंदी में उसको थोड़ा कैसे बताऊं मैं आपको, मतलब जैसे मैं ऑर्डर करता हूँ, आई वॉन्ट टू ऑर्डर करना चाहता हूँ, हम्म। पर मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझे ऑर्डर करे। हाँ, मैं वही बोला ना, वही। आई एम हेयर नॉट टू बी टॉट। अच्छा चलो, इसको अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं, आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू ऑर्डर मी। ये तो क्लियर हो गया, अभी बताया था मैंने। हम्म। जैसे मैंने कहा था आई वॉन्ट यू टू डांस, मैं चाहता हूँ डांस करो। आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। अब डोंट से भी तो हो सकता है, आई डोंट वॉन्ट, आई डोंट, हाँ वॉन्ट उसमें मिस हो गया, वॉन्ट लगाया। आई डोंट वॉन्ट हम्म। एनी वन टू ऑर्डर मी, हम्म। मैं नहीं चाहता कोई मुझे ऑर्डर करे। हाँ, क्लियर। अब उसी को आई डोंट वांट टू बी ऑर्डर्ड कह सकते हो, ओके। आई डोंट वांट टू बी ऑर्डर्ड बाय एनीवन। ओके। तो वो पैसिव में चला गया, ये सिंपल है। तो ये दिमाग में जब सेट होंगे ना तो फटाफट निकलेगी इंग्लिश। लेकिन प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, जम के 100 सेंटेंस बना डालो एक दिन में, फिर देखो आप यू विल सी द रिजल्ट्स। हम्म। तो अब देखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आर यू एंजॉइंग व्हाट आई एम टीचिंग यू। यस सर, आई एम एंजॉइंग। अब वही जो चीज अभी बताई थी ना, व्हाट आई एम टीचिंग यू। अब क्वेश्चन था पहले, आर यू एंजॉइंग व्हाट आई एम टीचिंग यू, और व्हाट एम आई टीचिंग यू नहीं बोला मैंने, व्हाट आई एम टीचिंग यू। ठीक है ना?
अभी ना मैं आपको कल क्वेश्चन टैग्स बताऊंगा, तो मेरे को याद दिला दी। क्वेश्चन टैग्स हम्म, ये कल बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो ये हो गया। अब कई बार हम लोग बोलते हैं कि वो तो हमेशा से झूठा है, वो तो हमेशा से झूठा आदमी है ना। तो हमेशा से झूठा है, बोलते हैं अरे उस आदमी का क्या विश्वास करना, तो हमेशा से ही झूठा आदमी। he was always lie. अब इसमें देखो क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही है ये, है ना, क्योंकि झूठा रहा हैज बीन अ लायर। लायर मतलब झूठा। ही हैज बीन अ लायर सिंस हिज चाइल्डहुड। बचपन से ही हैज बीन अ लायर सिंस हिज चाइल्डहुड, वो बचपन से ही झूठा है। अब जैसे मैंने बोला था, उसका विश्वास क्या करना, उसका विश्वास क्या करना, वो तो झूठा ही है। तो इसको कैसे बनाओगे, तो हमेशा ना सब्जेक्ट को पकड़ लो। अब आपको लग रहा है ही इज, उसका विश्वास क्या करना, ही इज नॉट। अब इतना बन गया, अब क्या करूं। अब आपने सपोज इतना बना लिया तो सिंपल है, ही इज नॉट टू बी ट्रस्टेड। फिर टू बी का यूज आ गया। उसका विश्वास क्या करना, ही इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, ही हैज बीन अ लायर सिंस हिज चाइल्डहुड। आई एम टू बी ट्रस्टेड, मैं विश्वास के लायक, या आई एम ट्रस्ट वर्दी भी बोल सकते हो, या ही इज हम्म, नॉट ट्रस्ट वर्दी भी बोल सकते हो। ही इज नॉट ट्रस्ट वर्दी, worthy. वो विश्वास के योग्य नहीं है। ठीक है, मतलब खेलो आप, यू हैव टू प्ले विद द सेंटेंसेस। आप जब खुद खेलोगे ना तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये। उसको खेलो, बना उल्टा सीधा कुछ भी, सब्जेक्ट लो, बनाओ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। जब आप उससे खेलने लगो, यू विल स्टार्ट प्लेइंग विद द सेंटेंसेस वर्ड्स यू लर्न, देन यू हैव अ माइंड सेटअप विथ ऑल दीज स्ट्रक्चर। तो एक बार सेट हो गया ना, देन यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट। अब देखो फिर मेरा यूज हो गया वही गोइंग टू, अपने आप आएगा वो, यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट, तो फिर आप भूलने नहीं वाले। ट्राई टू प्ले विद दीज सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। अब जो मैं लिखता हूँ ना, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है विद इन 5 days और 5 lessons, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर दो पूरा, सारे यूजेस फेयरली जो भी मैंने बताया आपको अभी तक, फेयरली वेदर, पता नहीं क्या क्या, मैं तो भूल गया क्या क्या बताया। तो जस्ट रिवाइज देम एंड ट्राई टू प्ले, अलग अलग तरीके से बनाओ। चलो एक स्टोरी बताते हैं एट द एंड। एस एल लोनी, हैव यू हर्ड दैट नेम। Which चलो कोई बात नहीं है। ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन
एंड एस.एल. लोनी ने ट्रिग्नोमेट्री लिखी थी। ट्रिग्नोमेट्री जो मैथ्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ी थी। एस.एल. लोनी was a failure in his life because what he used to do when he appeared in any exam, what he used to do, he had question paper, but instead of solving all the questions, what he used to do, he used to solve only one question in different ways. मतलब वो एक क्वेश्चन उठाता था, उसको कई तरीके से करने की कोशिश करता था। इससे कर लिया, इससे, पेपर में भी, एग्जाम में भी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस he was a completely failure and he was failed in his class many times, many years. कई बार फेल हुआ वो, and he was thrown out of his school. ये तो गधा बच्चा है, कभी पास हो नहीं सकता, ये करता ही नहीं है पेपर, एक ही प्रश्न को कई तरीके से करता है। बट द पीपल couldn't understand actually what he was doing. But later he made that subject trigonometry. And the people who were making fun of him earlier, and now they have been reading his book. तो जो उसका मजाक उड़ाते थे, वो अब उसकी किताब पढ़ते हैं ऐसे लोग। So what I mean to say, what is the teaching of telling you that story? कि खेलना शुरू कर दो, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। मेक सेंटेंसेस, बनाओ, अपने मन से बनाओ, कुछ भी बनाओ, लिखो, करो, अपने आप आने लगेगा। आप कब तक नहीं आएगा? इफ आई कैन लर्न, व्हाई कांट यू? अगर मैं सीख सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? आई हैव नॉट कम फ्रॉम मंगल ग्रह, आई वॉज born here on this earth and you too. तो खेलो। क्लियर? Yes, sir. जो मैं बोलता हूँ उसका थोड़ा सीरियसली लेने लग जाओ आप, बस। करो, सेंटेंसेस खूब सारे बनाओ, उल्टे सीधे जैसे बने। यू आर इम्प्रूविंग डेफिनेटली। अब आप, यू आर नाउ मेकिंग सेंटेंसेस, ट्राइंग टू मेक दैट्स गुड, बट स्टिल थोड़ा सा और अपना एफर्ट लगाओ, Hmm. है ना? Yes, sir. चलो ठीक है, ओके। Okay. वी आर गोइंग टू हैव नेक्स्ट। Sir, if tomorrow I'll inform you ओके before 2 or 3 years. ओके ओके ओके। Okay, sir. ऑल द बेस्ट, कीप Thank you, sir. लर्निंग। गुड Thank you. नाइट, गुड नाइट।